ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਣਾਓ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਲਾਈਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਲਾਈਟ ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਲਾਈਫ more will be the light, more will be the life, more will be the light, more will be the light, more will be the life। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਲਾਈਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਟ ਲਾਈਟ ਮੇਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन या सनलाइट जो मर्जी वर्ड बोलो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी या सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हाउ इट एक्ट एज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जी गल हुणे बोली है उही सारी की सारी चीज़ ये रिपीट होएगी कि सनलाइट सन है तो सनलाइट है सनलाइट विल बी द फोटोसिंथेसिस विल बी रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फूड है तो जिन्ना ज़्यादा फूड अवेलेबल होएगा उन्ना ही ज़्यादा फूड नूं खाण वाले जानवर अवेलेबल होणगे तो फूड बनाने वाले बंदे प्लांट हो गए प्लांट नूं खाण वाले या फूड नूं खाण वाले बंदे हरबीवोर हो गए तो सारी जी सारी फूड चेन जिहड़ी है अल्टीमेटली सनलाइट तो ही स्टार्ट होंदी है इस करके जिहड़ा हैगा ये बोला जाता है कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली सन नूं देवता मन्निया जाता है ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਵੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਿਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫੂਡ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ डिस्टर्ब हो जाएगी एंड इट विल रिजल्ट इनटू द प्रॉब्लम बोलो क्लीयर तो लाइट इंटेंसिटी जिहड़ा तुसीं हैडिंग बनाया सी वो इहदे नाल इनडायरैक्टली एसोसिएटेड आ लाइट इंटेंसिटी जिन्नी ज़्यादा लाइट अवेलेबल होएगी उन्ना ज़्यादा मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मोर विल बी द फोटोसिंथेसिस +1 ਦਾ ਵੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਨੀ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ੀਓਫਾਈਟਸ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੀਲੀਓਫਾइट्स तो आपने याद रखना शीओफाइट्स वर्ड जो भी आए शीओ श तो श तो याद रखना छां या शीओफाइट्स केड़े ने शेड लविंग प्लांट्स ते हीलियोफाइट्स केड़े प्लांट ने दीज आर सन लविंग प्लांट्स तो जेड़े बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੀਲੀਓਫਾਈਟਸ ਜਾਂ ਸਨ ਲਵਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ परफॉर्म कर लेंगे है तो उसनों जिहड़ा हैगा असी शीओफाइट्स बोलते हैं या शेड लविंग प्लांट्स बोलते हैं तो शेड लविंग बहुत ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए सन लविंग बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए है तो इसे बेसिस के उपर फोटो पीरियोडिज्म जिहड़ा हैगा साडा नैक्सट टॉपिक पढ़न लगे हाँ तुसी फैक्टर बनाना फैक्टर बना लो हैडिंग बना लो हैडिंग बना लो जिस तरह तुहानूं ठीक लगता वो तुसी बना लो फोटो पीरियोडिज्म ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ आपस च इंटरकनैक्टेड ने तो पहला बनाओ हैडिंग फोटो पीरियोडिज्म द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इन अ डे द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इन अ डे एक दिन दे विच कितनी देर वास्ते सनलाइट अवेलेबल है द ड्यूरेशन ऑफ
सनलाइट इन अ डे। ड्यूरेशन का मतलब आप समझते हो टाइम पीरियड, तो सनलाइट या लाइट कला लिख लो इन अ डे। तो डे ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, 5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, 10 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, 12 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, 15 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫੋਟੋ ਪੀਰੀਓਡਿਜ਼ਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਚਲੋ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਕਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ, आई कैन ऑल्सो टेक इट एज एन फैक्टर ड्यूरेशन ऑफ लाइट। जिस तरह इंटेंसिटी प्रभाव पा रही है प्लांट्स की ग्रोथ के उपर, उस तरह ड्यूरेशन भी बहुत इन्फ्लुएंस पाती है या इफैक्ट पाती है। हुण देखो, एक होंदी सड़ी धुप, बहुत तिखी धुप, तो वो आप सबनों पता इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी उस धुप के बहुत ज़्यादा है। हुण इस वेले जिहो जिहा बाहर इन्वायरमेंट है, शेडी जिहा इन्वायरमेंट है, क्लाउडी जिहा इन्वायरमेंट है, तो क्लाउडी इन्वायरमेंट के लाइट की अवेलेबिलिटी घट जाएगी, तो फिर लाइट इंटेंसिटी तो सीधा सीधा ही प्रभाव पै रहा। जे क्लाउडी डे है तो फिर इन्हों फायदा है, तो जे ब्राइट सनी डे है तो फिर इन्हों फायदा है। आप समझते ही हो, ब्राइट तिखी धुप, तो तिखी धुप मतलब लाइट की इंटेंसिटी उस वेले बहुत ज़्यादा है। तो तिखी धुप मतलब जिवें सवेर का टाइम होंदा है, या शाम का टाइम होंदा है, या क्लाउडी डे जिवें अजकल धुंध का टाइम, उत्थे लाइट तो है पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत घट है। तो दिस विल इफेक्ट द प्लांट। तो द सेम इज़ द केस विद ड्यूरेशन। तिखी धुप गर्मियां दे विच, जून जुलाई दे विच, मई जून दे विच आप देखो दिन किन्ने लंबे होंदे आ। हुण साडा वेख लो शेड्यूल बदल गया है ना, हुण सूरज भी लेट आ रहा तो चले भी जल्दी चाहता है। आपां कहंदे ना सर्दियां च रातां लंबियां हो जांदियां ते दिन छोटे हो गए, तो गर्मियां दे विच दिन तुसीं नोटिस करना, गर्मियां दे विच 7:30 पौने 8 बजे तक भी चानन होंदा है ना, तो सवेरे 4:30 बजे सूरज आ जाता। तो हुण वेखो कित्थे 7 बजे चानन होंदा, कित्थे 6 बजे जिहड़ा हैगा 6:15 बजे अंधेरा पैना शुरू हो जाता, 6:30 बजे बिल्कुल डार्क हो जाता। तो फिर मतलब फ़र्क पै गया ना, तो फिर फ़र्क पै गया तो इसदा मतलब दैट इज़ ऑल अबाउट। तो एक दिन दे विच उहदी की ड्यूरेशन हो रही है, तो उसनूं आपां की बोलांगे? फोटो पीरियोडिक या फोटो पीरियोडिज्म। द ड्यूरेशन ऑफ लाइट इन अ डे इज़ नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। हुण आ जिहड़ी फोटो पीरियोडिज्म है, ये प्लांटां दे उत्ते, चलो प्लांटां तो ही स्टार्ट करते हैं, एनीमल्स के उत्ते इंडरैक्ट पैंदा, डायरैक्टली प्लांटां के उत्ते। तो प्लांटां के उत्ते बड़ा इफैक्ट पाती है। तो पहला इफैक्ट की पैंदा फोटो पीरियोडिज्म का? फ्लावरिंग एंड ग्रोथ। पहला फैक्टर फोटो पीरियोडिज्म का प्लांट्स के उपर की इफैक्ट पा रहा है? फ्लावरिंग आप सब लोग समझते हो, बूटे नूं फुल लगना, बूटे के फुल लगन के प्रोसैस नूं असीं फ्लावरिंग बोलते हैं। बोलो एम राइट? बूटे के फुल लगन के प्रोसैस नूं असीं फ्लावरिंग बोल रहे हैं। दीजिए ओके आ? तो जे बूटे के फुल लगन के प्रोसैस नूं असीं फ्लावरिंग बोल रहे, तो मैं फिर ब्लूमिंग भी कह सकदा कि प्लांट ब्लूम कर गया, फुल खिल रहा उहदे ते। ठीक है, वो फुल खिलन दे, फुल लगन दे हिसाब दे नाल ये याद रखना, प्लांटां नूं आपां 3 कैटागरीज च डिवाइड करते हैं। LDP, SDP ते DNP। ये 3 तरह के प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग विद रिस्पैक्ट टू फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म की है? एक दिन दे विच कितनी लाइट अवेलेबल है, तो उहदे हिसाब दे नाल वेखो 3 तरह के प्लांट हो गए। LDP की फुल फॉर्म की है? LDP स्टैंड्स फॉर लॉन्ग डे प्लांट। बोलो क्लियर? लॉन्ग डे प्लांट नाम ही इंडिकेट कर रहा है। SDP स्टैंड्स फॉर शॉर्ट डे प्लांट। तो फिर तुसीं मैनूं दसो, आपां नूं पता है शॉर्ट डे सर्दियां च, तो फिर ये सारिया सर्दियां वालियां फिट कर दो कि एग्जाम्पल। लॉन्ग डे गर्मियां च, सारिया गर्मियां दी फसलां वैजीटेबल सब ये लिख दोगे। तो DNP स्टैंड्स फॉर डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट। तो लॉन्ग डे प्लांट ये किहड़े प्लांट ने? दीज आर दोज पर्टिकुलर प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर
ਵੈਨ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 12 ਆਵਰਸ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਾਫ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ 12 ਤੇ ਜੇ ਲਾਈਟ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੌਂਗ ਡੇ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਲਾਈਟ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ 13 ਘੰਟੇ 14 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 11 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਲੌਂਗ ਡੇ ਪਲਾਂਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਡੇ ਪਲਾਂਟ, ਜੇ ਲਾਈਟ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਬਈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਡੇ ਬੋਲੋ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ 12 ਤੇ ਹਾਫ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ। 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ। ਜੇ ਦਿਨ 14 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਰਾਤ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਇੱਧਰ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। तो फिर आप ऑब्वियसली जो इधर ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ ਇਹ ਲੌਂਗ ਡੇ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਡੇ। ਜੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਲੌਂਗ ਨਾਈਟ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਧਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾਈਟ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। बोलो ठीक है। तो दिस इज फोटोपीरियोडिज्म। तो मतलब फ्लावरिंग जी या प्लांट की ग्रोथ जी इट क्लीयरली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट पर डे। एक दिन च कितनी देर की अवेलेबिलिटी है लाइट के कोल, ड्यूरेशन कितनी देर के लिए अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आप तीन तरह के प्लांट नहीं बनाते। तो ये भी आप ये भी कह सकते हैं ना कि लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट या डे न्यूट्रल प्लांट, दीज आर डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट या अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। मोर दैन 12 आवर्स दिस कैटेगरी, लैस दैन 12 आवर्स दिस कैटेगरी, बराबर बराबर। या बेसिकली ये वो प्लांट ने बराबर बराबर नहीं, बेसिकली ये वो प्लांट ने विच आर नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। इन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा, लाइट वध होवे लाइट घट होवे, इन्होंने अपना काम जोड़ा है बखूबी तरीके दे नाल चलाई जाना। हुण तुसीं कोई गर्मियां की फसल वाली एग्जाम्पल दे दिओ, पंजाबी का वर्ड है, तुसीं सारे जने ने अपने घरां च भी यूज़ किया होना, वीट। धुप्पां लगणगियां ते कणकां पक्कणगियां। विसाखी 13 अप्रैल टक लाया जाता ना, तो 13 अप्रैल नूं की हुंदियां, गर्मियां। तो इसदा मतलब फरवरी तो बाद, फरवरी के आपां थोड़ा थोड़ा मन के चलते मौसम टल जाता है, ठंड घट जाती है, फिर मार्च आ गया, फिर अप्रैल आ गया, तो मार्च अप्रैल च दब के गर्मी पैंदी है, तो कणकां पक जांदियां। बोलो दीदिओ ठीक है कि नहीं। तो फिर इसदा मतलब गर्मी की फसल की एग्जाम्पल तुसीं जिहड़ा हैगा लॉन्ग डे प्लांट दे विच लिख सकते हो, वीट लिख सकते हो। शॉर्ट डे प्लांट दे विच दसो, शॉर्ट डे प्लांट की एग्जाम्पल लिखनी तो टोबैको लिख लो, टमाटर लिख लो, कॉटन लिख लो, चावल लिख लो, ये सारे शॉर्ट डे प्लांट्स ने। तो डे न्यूट्रल प्लांट, यदि टमाटर, यदि एग्जाम्पल लिखो टमाटर हर वेले ही अवेलेबल होंगे आ, जो मर्जी जाओ सब्जी मंडी, सर्दियों भी मिलणगे, गर्मियों भी मिलणगे, ऑटम च भी मिलणगे, स्प्रिंग च भी मिलणगे, सब सीजन च मिलणगे कि नहीं। सब्जी के लिए सब तो ज़्यादा जरूरी चीज़ टमाटर, तो वो किहदी एग्जाम्पल आ, टमाटर एग्जाम्पल आ डे न्यूट्रल प्लांट की। तो फोटोपीरियोडिज्म 100% इफेक्ट द लाइट। बोलो क्लीयर है। तो पवा आगे नैक्सट लिखो अगला फैक्टर फोटोपीरियोडिज्म के नाल ही रिलेटेड आ, जानवर शो करते हैं फिनोमिना एंड कई लोग बहुत दीवाने होंगे इस फिनोमिना के, बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं प्लांट्स सॉरी जानवरों, बर्ड्स को ऑब्जर्व करने के लिए। बर्ड सेंचुरी वगैरह नाम सुनिया जे कभी, तो उत्थे लोग जाते हैं ना बर्ड सेंचुरीज की वेखन जाते हैं पक्षी। किहड़े पक्षी? माइग्रेटरी बर्ड्स। हुण जिहड़ा पक्षी कोई तुहाडी कलोनी दे विच अवेलेबल आ, कोई तुहाडे घर दे विच अवेलेबल आ, उन्होंने तुसीं किते दूर थोड़ी वेखन जाओगे। हुण अपने पंजाब दे लागे, अपने अमृतसर दे, पंजाब की गल छोड़ो, अपने अमृतसर दे लागे एक सब तो वधिया बर्ड सेंचुरी अवेलेबल है, सब तो लागे किहड़ी, बड़े लोग जाते उत्थे। बस नवंबर च शुरू हो जाना उत्थे, नवंबर तो पहले हुण अजकल उत्थे कोई नहीं हैगा। बस जो ही 1 नवंबर चढ़ी 15 अक्तूबर 20-25 अक्तूबर तो बाद, मतलब नवंबर तो ही ला लो, बस 1 नवंबर चढ़ी तो बस उत्थे रश पैना शुरू हो जाना उस जगह के उत्ते। किहड़ा इलाका? अपने अमृतसर के सब तो लागे। अमृतसर के जिन्ने भी शौकीन बंदे है बर्ड वाचर, जिहड़े बर्ड्स नूं वॉच करना पसंद करते हैं, या बहुत सारे लोग तो चलो पक्षी नूं तो जो वेखन जाते ही जाते हैं, बहुत सारे लोग फोटोग्राफरी करन जाते हैं, फोटोआं खिच्चन जाते हैं, दूरों दूरों भी आते बंदे बड़े इत्थे फोटोआं खिच्चन।
सरकार भी उस टाइम पर बहुत एक्टिव हो जाती है। हुण तो मैं तुहानूं बहुत वड्डा हिंट देता, सरकार बहुत एक्टिव हो जाती है, प्राइवेट जगह नहीं है वो किसी की। पॉलिटिशियन ने बड़ा उन्होंने इस्तेमाल भी किया उस जगह को। हले भी कई वारी सोशल मीडिया के उत्ते ट्रोल होंदा कॉमेडी को लैके। पानी वाली बस का नाम नहीं सुनिया तुसीं? नहीं सुनिया, ओके चलो छड्डो। अपने बिल्कुल लागे हरी के पत्तन का नाम सुनिया जे? तो बस फिर वो हरी के पत्तन जिहड़ा हैगा उसनूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बर्ड सेंचुरी डिकलेयर किया होया। बस हुण 1 नवंबर तो उत्थे जिहड़ा हैगा माइग्रेटरी बर्ड्स दूरों दूरों साइबेरिया बहुत दूरों दूरों यूनीक पक्षी जिहड़ा हैगा तुहानूं उत्थे देखण नूं मिलणगे। पंछियां दा मेला ही लगा हुंदा उत्थे, तो बहुत सारे बर्ड्स वाचर जिहड़ा हैगा उत्थे चले जाते हैं किन्हां नूं वेखण, बर्ड्स नूं वेखण। तो सारे बर्ड्स, कोई भी बर्ड अपना नेटिव बर्ड नहीं होंदा, सारे माइग्रेटरी बर्ड होंदे। कोई अलास्का तो आया, कोई साइबेरिया तो आया, कोई कितों आया, कोई कितों आया, क्योंकि उधर उन्हां समयां 'च की हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड वध जाती है, तो फिर इधर नूं जिहड़ा हैगा भज्जे जाते। तो जदों इत्थे गर्मियां पैणियां शुरू हो जाणियां साडे जनवरी तो बाद फरवरी मार्च, फिर उन्होंने उड़ के जिहड़ा हैगा भज के उधर चले जाना। तो बर्ड माइग्रेशन, तो फिर वेखो टैंपरेचर तो लाइट आपस च इंटरकनैक्टेड नहीं हो गए। टैंपरेचर तो लाइट आपस च इंटरकनैक्टेड है। जे वेखो तिखी धुप लगी है, लाइट बहुत ज़्यादा है, तो टैंपरेचर भी तो ज़्यादा ही है ना। तो जे क्लाउडी डे है, जे लाइट की इंटैंसिटी घट आ, तो क्लाउडी डे दे अपने आप तुहानूं पता है कि थले डिग जाना, टैंपरेचर भी थले डिग जाना। अज तुसीं कह रहे हो एसी ना चलाओ क्योंकि बाहर मौसम कैसा है, थोड़ा ठीक है, बोलो क्लीयर है कि नहीं? वो जैकटा तो वेख के सानूं अंदाजा लग ही जाना कि बाहर मौसम कैसा है। बोलो दीदी वो क्लीयर है? तो इसका मतलब फिर टैंपरेचर का भी तो फर्क पै रहा ना। तो जे यही बिल्कुल ब्राइट सनी डे होंदा, सूरज पूरा अपने जोरां ते होंदा, तो फिर आप जिहड़ा है जैकेट्स थोड़ी पा के आनियां सी। बोलो क्लीयर? नैक्सट पॉइंट लिखो बर्ड माइग्रेशन। तो ढेर सारे बर्ड जिहड़े ने माइग्रेट करते हैं बोलते हैं नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। नॉर्थवर्ड, नॉर्थ वाले पासे नूं भज्जे जाते। नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ बर्ड्स is triggered by increase in the daylight increase in the daylight and their return will take place in the autumn season. नैक्सट लिखो अगला जो ऊपर पढ़िया बिल्कुल वो रिलेटिड है, सिर्फ हैडिंग अलग आ तो बंदे अलग आ, कंसैप्ट सेम आ। ब्रीडिंग साइकिल, नैक्सट पॉइंट लिखो ब्रीडिंग साइकिल। अगे पहले आप लिखा LDP, हुण आप कर देना LDA, SDP, SDA, DNP तो DNA। तो समझ गए? LDA L लॉन्ग डे, यस एग्जैक्टली, एनिमल्स लॉन्ग डे एनिमल्स, शॉर्ट डे एनिमल्स, डे न्यूट्रल एनिमल्स। तो समझ गए? ब्रीडिंग साइकिल, ब्रीडिंग साइकिल मतलब उन्होंने रिप्रोड्यूस करने की क्षमता, उन्होंने रिप्रोड्यूस करने का टाइम, उन्होंने कदों इंटरकोर्स करना है या अपनी प्रोजैनी नूं जिहड़ा हैगा अगे वधाना है। तो बहुत सारे जानवर ऐसे ने जिहड़े लॉन्ग डे, जिन्हां दा ब्रीडिंग साइकिल लाइट दे नाल इन्फ्लुएंसड हो जाता है। लॉन्ग डे एनीमल्स, गल फिर वही है वैन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इज़ मोर दैन 12 आवर्स, जिहड़े जो दिन लंबे होणगे, जिन्हां ने गर्मियां दे विच रिप्रोड्यूस करना, जिन्हां ने गर्मियां दे विच जिहड़ा हैगा ब्रीड करना। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो डियर, शीप, गोट। डियर, sheep, goat will reproduce when there is a fall in the light, यानी किधे जाके, हाँ किधे जाके, यस स्टारलिंग। स्टारलिंग मतलब पंछियां दा, चिड़ियां दा झुंड, उन्होंने स्टारलिंग बोलते, चिड़ियां वर्गियां होंदियां। टर्की, तो these used to reproduce or breed when availability of light is more than 12 hours, दिन लंबे होणगे, गर्मियां होणगियां, तो उन्होंने आप की बोलते हैं लॉन्ग डे एनिमल्स या शॉर्ट डे एनिमल्स। बोलो दीदियों ठीक है?
ਪ੍ਰਿਯਲ ਰਾਣੀ ਦੱਸੇਗੀ ਹਿਊਮਨ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ? ਬਿਲकुल ठीक है, ह्यूमन केड़ी कैटेगरी जाएगा? डे न्यूट्रल ह्यूमन, गिनी पिग, स्क्विरल्स, ये सारे डे न्यूट्रल एनीमल्स ने। इन्हों लाइट का कोई फर्क नहीं पैंदा, दिन होवे रात होवे सवेर होवे शाम होवे कोई फर्क नहीं पैंदा। लाइट कितनी अवेलेबल है इन्हों का, जदों मन चाहे ये उदों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो असी इसनों की बोलते हाँ? डे न्यूट्रल एनीमल्स। शैल आई प्रोसीड? नैक्सट पॉइंट लिखो, पिगमेंटेशन। ये तुसी अपने उत्ते भी चैक कर सकते हो। पिगमेंटेशन जिनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होएगी इट रिजल्ट्स इनटू द डार्कर पिगमेंटेशन। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? ब्राइटर लाइट, तेज लाइट, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल रिजल्ट इनटू द डार्कर पिगमेंटेशन। जिन्ना ज़्यादा धुप्पे रहोगे रंग उन्ना ज़्यादा काला होएगा। पता है कि नहीं? सनलाइट की हेल्प के नाल मेलानिन ज़्यादा सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा तो तुहाडा कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो जिन्ना ज़्यादा आप छावें रहोगे की होएगा? सनलाइट के नाल घट एक्सपोज करोगे तो की हो जाएगा? कलर फेयर होना शुरू हो जाएगा। क्यों फेयर होना शुरू हो जाएगा? मेलानिन की पिगमेंट तुहाडी बॉडी के अंदर घट जाएगी। तो ऑब्वियसली फिर वेख लो पिगमेंटेशन लाइट के नाल इफेक्ट हो रही कि नहीं हो रही? तो डार्कर लाइट, ब्राइट लाइट लिखो, डार्कर नालों वधिया ब्राइट लाइट विल रिजल्ट इनटू द डार्कर पिगमेंटेशन एंड लेस एक्सपोजर टू द लाइट विल रिजल्ट इनटू लेस पिगमेंटेशन। नेक्स्ट लिखो अगला पॉइंट। वैसे सुन लो, मैं तुहानूं दस देना इहदा पॉइंट की बनाना वखरा। ये फोटो पीरियोडिज्म के नाल ही रिलेटेड है। तुसी कभी नाम सुने पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री मैन, पोल्ट्री फार्म नाम सुनिया जे? दसो पुत्र, सुनिया कभी? की हुंदा पोल्ट्री फार्म? बोलो पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म जहाँ पे बच्चे रहते छोटे छोटे। ओ है, बोलो जिथे गावां मज्झां रखते हैं। ओके, एनीबडी एल्स? चिकन, मुर्गी के अंडे। चलो पोल्ट्री फार्म बेटा जिथे चूचे पाले जाते हैं, जिथे मुर्गियां पालियां जांदियां वो उस जगह को जिहड़ा हैगा पोल्ट्री फार्म बोलते हैं। जिन्हें भी तुसीं बाजारों अंडे लिया के या चिकन लिया के खाते हो उन्होंने कुछ लोग मेरे वर्गे या तुहाडे वर्गे बिजनेस करते उस चीज़ का। उन्होंने वड्डे वड्डे फार्म बनाए हुए हैं, उत्थे कुकड़ियां पालियां हुई ने, मुर्गियां पालियां हुई ने, उन्होंने अंडे कलैक्ट करते हैं तो फिर मार्केट के तुहानूं खाण दे लई जिहड़ा हैगा अंडे मिलते हैं। द सेम इज़ द केस विद द चिकन। वो कटते हैं चिकन कह रहे हैं चिक्स नूं, चूचियां नूं पालते हैं, वड्डा करते हैं तो फिर बेचते हैं तो उन्होंने वो जिहड़ा हैगा प्रॉफिट होंदा। तो उस पूरे बिजनेस नूं पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। ये जी पिगमेंटेशन का फोटो पीरियोडिज्म है, साइंस ने बेसिकली पोल्ट्री मैन ने बड़ा फायदा चुकया है। अंडे का अंडा कह रहे हैं जो चिकन है, जो कुकड़ी है, मुर्गी जी है, आप जिन्होंने जान के हैरानी होगी वह अंडे देने का प्रोसैस इट इज़ डायरैक्टली लिंक्ड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। इट इज़ डायरैक्टली लिंक्ड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। तो ये तो सुनिया मुर्गी एक अंडा दिंदी रोज़, सुनिया होगा ना? कहानी कुड़ी सुनी होनी छोटी क्लासा च, सोने की मुर्गी अंडा देना, सोने का अंडा मुर्गी ने देना, है ना? पता कि नहीं, सुनिया कि नहीं? तो यूजुअली एक मुर्गी एक अंडा रोज़ दिंदी है रेगूलरली, ठीक है? सुनिया कि नहीं? उन्हें तो ढिड फाड़ के सारे अंडे बाहर कढ़ लए सी तो उन्होंने कख भी नहीं लभा। यूजुअली एक मुर्गी रोज़ एक अंडा दिंदी है। पर पोल्ट्री मैन जिहड़े ने उन्होंने तो बिजनेस है ना, जो मुर्गी 2 अंडे दे दे तो उन्होंने तो प्रोडक्शन डबल होगी, है ना? कितने एक महीने 30 अंडे, कितने एक महीने 60 अंडे। तो वो की करते हैं अपने पोल्ट्री फार्म के विच बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट मतलब वड्डे वड्डे लाटू, वड्डियां वड्डियां ट्यूब्स, कितनियां सारियां। जो एक कमरे के विच 1-2 ट्यूब के नाल वधिया गुजारा हो रहा। हुण जिवें यूजुअली तुसीं अपने घरां 'च वेखो, तुहाडे बैडरूमां 'च, तुहाडे स्टडी रूम के विच, तुहाडे नॉर्मल कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक कमरे 'ਚ 1 ट्यूब, बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए तो 2 ट्यूबां, किसी ने अपने कमरे 'ਚ 5-7 ट्यूबां लाइयां,
कोई नहीं लाता, ठीक है। लेकिन जो 5-7 ट्यूबा ला दोगे तो की होएगा, लाइट है ना, एक लाइट ऑन करांगे तो उहदे हिसाब दे नाल लाइट प्रोड्यूस होगी, 2 ट्यूबा ऑन कर देंगे तो उहदे हिसाब नाल 5-7-10 ट्यूबा जिन्नियां भी एक कमरे च ट्यूबा लाई जाओगे उन्नी लाइट की हो जाएगी। तो जो पोल्ट्री फार्म वाले अपने कमरे में अपने उस फार्म के जिन्नी भी रिक्वायरमेंट होंगी उस तो 5-7-10 गुना बढ़ा देंगे लाइटा की, बहुत ज़्यादा लाइट की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। कहदे वास्ते तो उस लाइट की प्रोडक्शन के नाल उन्होंने एडवांटेज बहुत होंदा, बहुत एडवांटेज होंदा कि मुर्गी दिन दे विच एक अंडा देने की बजाय 2-2 अंडे देना शुरू कर देंगे। यूजुअली मुर्गी को पता लग जाता कि हुण बाहर नेरा पै गया, ठीक है। तुसीं ये भी सुनिया होना सवेरे सवेरे अलार्म कौन चलाता है, मांगा कौन दिंदा है ना, जिन्होंने घरे जे कोई पोल्ट्री फार्म वाले आ या किसी का घर पोल्ट्री फार्म के लागे चागे हो उन्होंने अलार्म की लोड़ नहीं। वो जिस तरह ही सूरज की पहली रोशनी चढ़ेगी 4 बजे 5 बजे जो भी सूरज ने चढ़ना वो कुकड़ा ने उच्ची उच्ची बोलना शुरू कर देना। की बोलना शुरू कर देना, की बोलना शुरू कर देना कि भाई दिन चढ़ गया उठ जाओ। द सेम इज़ द केस विद जिन्होंने घरे डोमैसटिक एनीमल रखे है, डॉग हो गया या कोई होर हो गया, वो भी अपना अलार्म बजा देंगे, पर वो अलार्म सूरज के हिसाब से नहीं बजाते, वो अपनी रूटीन के हिसाब से बजाते हैं। जो उन्होंने 1 नंबर या 2 नंबर जाना हो, जो तुम डॉगी को बन के रखे है या उन्होंने किसी पिंजरे बंद करता तो उन्होंने अपना अलार्म बजा देना कि भाई प्लीज़ सानू थोड़ी देर लिए आज़ाद कर दो, असी जो है जरूरी काम करके फिर वापस अपने घरे आ जाएंगे। तो उन्होंने भी अलार्म बजता, पर वो सूरज के नाल नहीं बजता। इन्हों का अलार्म सूरज की पहली किरण के नाल जिहड़ा हैगा अलार्म चल जाता। हुण जो शाम को सूरज छिपेगा इन्हों पता लग जाएगा ना सूरज छिप गया, तो पोल्ट्री मैन की करते हैं जिवें सपोज करो 6 बजे सूरज ने छिपना, वो 4:30 बजे ही 5 बजे या 5:30 बजे सूरज छिपण तो पहले अपनी सारी कमरे के लाइट ऑन कर देंगे। मुर्गी को भुलेखा पै जाता है कि हाले तो रात पई नहीं, वो फिर रात पई नहीं मतलब आप दिन वो आर्टिफिशली की करता ਵੱਡਾ करता, तो वो एक दिन के 2-2 अंडे दे देती है। तो वो पोल्ट्री मैन की जोड़ा है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन डबल हो जाती है। बोलो क्लीयर है। ये कई तो यहो भी होंगे जो उन्होंने सौन नहीं देंगे, सारी सारी रात भी लाइट चला के रखते कि अंडे दे ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अंडे देने का बिहेवियर जोड़ा है इट इज़ सीधा सीधा जोड़ा है फोटो पीरियडिज्म। द प्रोसैस ऑफ एग लेइंग इज डायरैक्टली डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ड्यूरिंग अ डे। तो वो आर्टिफिशली उन्होंने पागल बना के उन्होंने तो जोड़ा है वाधू अंडे भी जोड़ा है ऑब्टेन करते हैं। नैक्सट लिखो डेली रिदम्स। अगला पॉइंट डेली रिदम। डेली रिदम या स्लैश पा के आप लिख सकते हो डेली एक्टिविटीज़। आपने 2 नाम सुने हुए हैं, आप सारे जाने इन्होंने 2 नामों जानते हो। ये तुहाडे लिए नवा नाम नहीं है और ये भी तुहाडे लिए नवा नाम नहीं है। तुहाडे चो भी बहुत सारे बंदे होंगे। ये कशिका दीदी सानू दसणगे। कशिका दीदी आप कौन हो, किस कैटेगरी में आते हो? आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हो, नॉकटर्नल और डायर्नल? बोलो। नहीं। आज तेजस रानी आप किस कैटेगरी में आते हो? पता ही नहीं। ओके, जशन दीदी ने पूछ लेना। जशन दीदी तुसी किहड़ी कैटेगरी चाहते हो? नहीं। ओके, नॉकटर्नल बेटा वो बंदे होंगे है जिहड़े नाइट लविंग होंगे, रात को जागते हैं। तो डायरनल वो बंदे होंगे है जिहड़े दिने जागते हैं। ठीक है। हुण जिवें साडे सामने एक कॉकरोच बैठा है, तो तुहानूं पता है कॉकरोच कदों आंदा बाहर? नेरे च। तो इसका मतलब कॉकरोच की हो गया? कॉकरोच की हो गया? कॉकरोच नॉकटर्नल हो गया। ठीक है। ये साडे सामने जिहड़ा हैगा एक माऊ बिल्ला भी बैठा है जो रात को बाहर आता है, तो फिर वो की हो गया? ठीक है। साडे सामने एक चूहा भी है जो सवेरे सवेरे बाहर आ जाता। वैसे चूहे रात को खुटा च बाहर आते, पर आ चूहा सवेरे सवेरे बाहर आ जाता, तो की हो गया? डायरनल हो गया। बोलो क्लीयर। तो फिर वेखो जी, आप अपनी गल कर लीए, आप सवेरे सवेरे एक्टिव आ, सवेरे सवेरे एक्टिव आप। तो जे आप सवेरे सवेरे एक्टिव तो की हो गया? आप सारे की हो गए डायरनल। तो यूजुअली ह्यूमन जोड़ा है डायरनल ही होंगे। बाकी तुहाडी रूटीन अलग भी हो सकती है। हुण कशिका जोड़ा है ये सारी रात नहीं जोड़ा है सौंदी, ये सारी रात जोड़ा है पढ़ाइयाँ करती रहिंदी किताबों च, पर उदा मोबाइल उत्ते जोड़ा है कोई भी नैटफ्लिक्स या कोई भी जोड़ा है सोनी लिव ते वैब सीरीज़ चलती होणगियां। तो हैगा तो आप फिर रात को जाग रहे तो नॉकटर्नल हो गए। बहुत सारे बंदों पढ़ाई करते 2 ही बिहेवियर होंगे। कई लोग रात को बैठ के पढ़ते, कई लोग सवेरे सवेरे उठ के जोड़ा है पढ़ते हैं। कई लोग सवेरे सवेरे पढ़ते हैं, कई लोग जोड़ा है रात को पढ़ते हैं। ओहो,
नॉकटर्नल ते डायरनल। तो नॉकटर्नल ते डायरनल सीधा सीधा किहदे उत्ते डिपेंड हो रहा, लाइट के उपर, अवेलेबिलिटी लाइट के उपर। तो हुण जे मैं नॉकटर्नल रात को एक्टिवेट है तो यदा मतलब मैं लाइट पसंद नहीं करता, मैं लाइट को अवॉइड करदा ताइयों रात को बाहर निकले। तो जे मैं दिने दिने बाहर आ जाना तो यदा मतलब मैं लाइट को पसंद करदा है। तो मेरी एक्टिविटीज़ तो आप की हैडिंग बनाया डेली रिदम या डेली एक्टिविटीज़, तो दैट इज़ अगेन विद रिस्पैक्ट टू द लाइट। जेडे दिन वाले एक्टिव ने उन्होंने आप डायरनल बोलते हैं, जेडे रात वाले एक्टिव ने उन्होंने आप नॉकटर्नल बोलते हैं। बोलो दीदियो क्लीयर? ओके। आ तो दो नाम तुसीं सुने ही, ये कोई भी एग्जाम्पल दे दो। नॉकटर्नल की एग्जाम्पल कॉकरोच दे दो, ठीक है। डायरनल की एग्जाम्पल अपना नाम लिख दो। हुण आ तुसीं दसना जी मैनूं ये बंदे कौन है। क्रिपैस्कुलर, ये भी एक डेली रिदम ही है, जिस तरह नॉकटर्नल डायरनल आ, इस तरह एक रिदम है जिसको असीं बोलते हैं क्रिपैस्कुलर। हाँ जी, क्रिपैस्कुलर कोई आइडिया नहीं? एग्जाम्पल देवां फिर शायद तुहानूं याद आ जाए। जानवर नूं तो तुसीं जाणदे ही हो। क्रिपैस्कुलर की बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल है रैबिट। जे किसी ने कोई रैबिट का बिहेवियर कुछ माड़ा मोटा पता हो तो चिड़ियाघर च वेख्या कदी एक्टिव रैबिट? वेख्या जे कदी रैबिट? असली चिड़ियाघर च या किते उतना ओवरऑल किते तुरदा फिरदा किते वेख्या होवे तो कदी भी तुसी उसनूं दिन वाले एक्टिव नहीं वेखोगे, तो ना ही कदी वो रात में एक्टिव होएगा। क्योंकि वो की है कि क्रिपैस्कुलर कौन ने? ना दिन दे ना रात दे। क्योंकि जो दिन दे होंदे तो इस कैटेगरी च आ जाते, जो रात दे होंदे तो इस कैटेगरी च आ जाते। एक वर्ड होंदा उहदा नाम होंदा डॉन, एक वर्ड होंदा उहदा नाम होंदा डस्क। समझते हो? डॉन तो डस्क। सवेरे सवेरे दिन चढ़ता है, आप कह दें जी दिन चढ़ गया 8 बजे, लेकिन जो 8 बजे दिन चढ़ गया तो आप जी को पता है कि सवेरे 5 बजे तो लैके 6 बजे तक भी दिन ही होंदा। गर्मियों की गल कर रहे हैं, 5 बजे तो लैके 6 बजे तक भी दिन होंदा। पर वो दिन वो होंदा जो सूरज अवेलेबल नहीं होंदा। तुसीं कोठे चढ़ के जड़ेगा धुप नहीं सेक सकते। जे वो काम करना वो 8-9 बजे ही होना, लेकिन उस तो पहले पहले चानन तो हो जाता ना। तो द सेम इज़ द केस विद द रात, है ना। 5 बजे तक 6 बजे तक दिन होंदा, 7 बजे तक भी दिन होंदा कि नहीं होंदा। लेकिन वो दिन वो जिहा नहीं होंदा जिहो जिहा दिन 1 बजे या 2 बजे होंदा, क्योंकि उस वेले सूरज बिल्कुल पीक ते होंदा। मतलब लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की अवेलेबिलिटी बहुत घटी होंदी है। तो उस चीज़ को असीं सवेर का टाइम, शाम वेला, संध्या वेला जिन्होंने तुसीं अपनी लैंग्वेज च बोलते हो उन्होंने असीं डॉन ते डस्क बोलते हैं। तो जिहड़े जानवर सिर्फ डॉन के टाइम ते डस्क के टाइम ते एक्टिवेट होंदे आ, उन्हां जानवरां दे लई वर्ड यूज़ किया जाता क्रीपैस्कुलर। बोलो दीदियो ठीक है? ओके। इनू फिर होर भी अगे फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता जे औरोरल ते वैस्परल। औरोरल ते वैस्परल रैबिट तो हो गया एग्जाम्पल, जो औरोरल ते वैस्परल दोनों ही आ, मतलब क्रिपैस्कुलर आ सवेरे के टाइम पर भी एक्टिवेटेड आ, डॉन के टाइम पर भी एक्टिवेटेड आ, तो डस्क के टाइम पर भी एक्टिवेटेड आ। लेकिन औरोरल किहड़े हुंदे? जिहड़े सिर्फ सवेरे सवेरे मॉर्निंग टाइम ते ही, डॉन के टाइम के उत्ते, मॉर्निंग और डॉन टाइम के उत्ते जिहड़ा हैगा एक्टिवेट होंदे। तो आ ईवनिंग टाइम, शाम वेले, संध्या वेले ही सिर्फ जिहड़ा हैगा एक्टिवेटेड होणगे, अदरवाइज जिहड़ा हैगा एक्टिवेटेड नहीं होणगे। तो यदि आप एग्जाम्पल बहुत सारिया दुनिया के उत्ते लीजर्ड्स ने जिहड़ा औरोरल ते वैस्परल का फिनोमिना जिहड़ा हैगा शो करदियां ने। नैक्सट लिखो, लाइट दे नाल ही एसोसिएटेड आ, लाइट के नाल ही पुत्र एसोसिएटेड आ प्लांट मूवमेंट्स। लाइट के नाल ही एसोसिएटेड है प्लांट मूवमेंट्स। मूवमेंट का नाम याद रखना, भुलना नहीं। निकटी नेस्टिक मूवमेंट या निकटी ट्रॉपिक मूवमेंट, शायद तुम 10th क्लास भी पढ़ी होवे। निकटी नेस्टिक मूवमेंट्स या निकटी ट्रॉपिक मूवमेंट, ये मूवमेंट का नाम है। एंड ये मूवमेंट कौन शो करता है? पर्टिकुलरली लीव्स शो करते हैं। कौन शो करते? प्लांट का किहड़ा हिस्सा शो करता मूवमेंट है? पर्टिकुलरली लीव्स शो करते। तो लीव्स भी हर एक प्लांट के लीव्स नहीं ये मूवमेंट शो करते। लीव्स ऑफ पर्टिकुलरली लेग्यूमिनस प्लांट, लीव्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट के लीव्स रात नूं दे यूज टू फोल्ड अप और ड्रूप एट नाइट। रात नूं दे यूज टू
फोल्ड अप और ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਰੂਪ ਐਟ ਨਾਈਟ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਫ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਲ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਆ तो ड्रूप एट नाइट या फोल्ड करना मतलब कि इदा इदा फोल्ड कर जाते, ठीक है, या इदा फोल्ड कर जाते तो सवेर के टाइम तो जो बिल्कुल इदा फ्लैट हो जाते हैं। तो दिस मूवमेंट इज़ पर्टिकुलरली नोन एज निक्टीनेस्टिक मूवमेंट और निक्टीट्रॉपिक मूवमेंट। एंड अगेन दिस मूवमेंट रात को हो रही है, दिन को हो रही है, तो यदा मतलब फिर कहते नाल एसोसीएट होगी, बिल्कुल 100% लाइट के नाल एसोसीएट होगी। इसे दी एक एग्जाम्पल होर लिख लो, मोटाइल एलगी। एलगी मोटाइल एलगी ये नाम के नाल लग गया, मोटाइल तुरन फिरन वाली एलगी, मूव करने वाली एलगी। तो मोटाइल एलगी शिफ्ट टू द सरफेस ऑफ वाटर इन द डिम लाइट। लेडीज प्लीज इधर देखियो, इफ दिस इज अ पॉन्ड, छप्पड़, कोई नदी, कोई नाला, तो यह सारा कहना ना भरिया, बोलो दीदीज, वाटर के नाल भरिया। तो यह की करदियां ने रात वाले छड्डो, रात नहीं, डिम लाइट वाले जो लाइट की इंटेंसिटी घट आ, तो जो लाइट की इंटेंसिटी घट आ शाम के टाइम पर, सवेरे के टाइम पर, तो यदा मतलब इट इज़ वेरी क्लीयर कि लाइट इत्थों तक ही रहूगी, इत्थे तक तो नहीं ना आ सकती, पेनिट्रेशन पार घट गई क्योंकि इंटेंसिटी घट गई। तो फिर यदा मतलब जड़ियाँ एलगीज होणगियां वो की करनगियां, शिफ्ट करके डिम लाइट दे विच दे यूज टू कम एट द सरफेस ऑफ द पॉन्ड और एक्वैटिक वाटर बॉडी। सरफेस के उत्ते कदों आउणगियां, डिम लाइट के उत्ते। तो जो तेज लाइट होगी चले जाएंगे थले, जो इत्थे ब्राइट लाइट हो जाएगी, सूरज है पूरा चमकदार हो जाएगा, फिर इन्हों उपर रहने की लोड़ है, सूरज दी किरणा पानी के अंदर तक नहीं जाएगियां, तो फिर थले ही लैके जो है रह के लाइट नूं एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो दिस मूवमेंट इज़ ऑल्सो विद रिस्पैक्ट टू द लाइट। नैक्सट लिखो, ग्रोथ। नेक्स्ट लिखो, ग्रोथ। लाइट डायरैक्टली अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। 100% जी, तुसी दसो लाइट अफेक्ट कर सकती है प्लांट की ग्रोथ नूं कि नहीं? बोला भाई, लाइट डायरैक्टली अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दसो। हाँ, मैं एक नाम लिखा जे, क्लोरोफिल प्रेजेंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट विद इन द क्लोरोप्लास्ट। तो यदि सिंथेसिस लाइट नहीं करानी है तो लाइट विल बी द अवेलेबल, मोर लाइट विल बी अवेलेबल, मोर विल बी द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, एंड इफ मोर विल बी द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, तो फिर आपको पता ही है क्लोरोफिल की जिन्नी ज़्यादा सिंथेसिस होएगी उन्ना ज़्यादा पुत्र फूड सिंथेसाइज होएगा, फोटोसिंथेसिस होएगा, फूड फॉर्मेशन होएगा। तो जिन्ना ज़्यादा प्लांट के कोल फूड होएगा, दसो ग्रोथ होती उन्नी तेज होएगी कि नहीं होएगी? तो इट क्लीयरली इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द लाइट। ये तुसी वो भी लिख सकते हो जिहड़े मैं दो स्टार्टिंग कीते सी, शियोफाइट्स ते हीलियोफाइट्स। नैक्सट लिखो, ये एनीमल दे नाल रिलेटेड है, मूवमेंट, ये एनीमल दे नाल रिलेटेड है। नैक्सट फैक्टर मूवमेंट। पिछे आप मूवमेंट पढ़ी, वो एलगी की पढ़ी या पर्टिकुलरली लेग्यूमिनस प्लांट की पढ़ी, दोनों ही प्लांट सीगे। हुण आप मूवमेंट किस चीज़ की करन लगे, एनीमल की करन लगे। तो इनू कई बार जो है फोटोटैक्सिस भी किया जाता जे। इस मूवमेंट की जगह पर आप हैडिंग बना सकते हो, फोटोटैक्सिस। फोटो नाम ही इंडिकेट कर रहा है, लाइट। तो रिस्पॉन्स ऑफ एन एनीमल टुवर्ड्स द लाइट, लाइट के प्रति किसी जानवर का किस तरह का रिस्पॉन्स है, तो वी डू कॉल दैट एज अ फोटोटैक्सिस। एंड पर्टिकुलरली मूवमेंट, इफ द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट। मूवमेंट, तुरना फिरना, वो लकोमोशन कितनी स्पीड से चलता पाया, तेज़ चलता पाया, हौली चलता पाया, लाइट के आने पर होर तेज़ हो जाता है, लाइट के आने पर घट जाता है, उसनों असी फोटोटैक्सिस बोलते हैं। एंड यदि सब तो वधिया एग्जाम्पल
तुसी सब ने नाम सुनिया, यूगलिना सुनिया नाम। तो यूगलिना शोज पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। पॉजिटिव फोटोटैक्सिस मतलब ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। जिधरले पासे लाइट होएगी ये उधरले पासे जाना शुरू कर देता, मतलब लाइट को प्यार करता ताइयों लाइट वाले पासे जान डे। तो जे कोई बंदा लाइट तो दूर जाना शुरू कर देगा तो असी उसनू नैगेटिव फोटोटैक्सिस बोल सकते हैं कि नहीं? बोलो। ये तुसी अपने घरे भी एक्सपैरीमेंट कर सकते हो, क्योंकि जिहड़ा जानवर ये आप लैना वो तुसी अपने घरे भी इनू मिल सकता तुहानू, स्पैशली जो किते बारिश बुरिश होवे। जानवर का नाम जे अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के मूँह से टॉर्च मारनी शुरू कर दो, मूँह से लाइट पानी शुरू कर दो, मूँह से लेजर लाइट या अगे ट्यूब लाइट रख दो, वो पिछे भज जाएगा। इसका मतलब ही इज़ नॉट मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, ही इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट। प्लैनेरिया भी ये एग्जाम्पल आ। अर्थवॉर्म प्लैनेरिया दोनों नैगेटिव फोटोटैक्सिस शो करते हैं, दोनों के दोनों नैगेटिव फोटोटैक्सिस शो करते हैं। नेक्स्ट लिखो फोटोटैक्सिस फोटोट्रोपिज्म बहुत हो गए। नेक्स्ट लिखो लाइट जोन्स इन एक्वेटिक हैबिटेट। लाइट जोन्स इन एक्वेटिक हैबिटेट। लाइट जोन्स इन एक्वेटिक हैबिटेट। कोई भी पानी वाली एक्वेटिक वाटर बॉडी होवे, एक्वेटिक वाटर बॉडी मतलब इट कैन बी छप्पड़, इट कैन बी नदी, दरिया, समुंदर, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इत्थे इक्को दे विच ही इफेक्ट देने वास्ते फ्रेम च है। तो ए देखो मैं एक जगह के उत्ते इफेक्ट देने वास्ते की करन लग्या, इधरों चलते 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 आ डूंगा करता है। ठीक है, मतलब जे इसनों आपां इत्थों तक पानी का भर देने तो आप देख सकते हो इत्थे पानी की डूंघाई घट गई है, घट डीप है। जिस तरह कोई बंदा अगे जाता जाओ, स्विमिंग पूल वगैरह तो वेख्या ही होना अपनी जिंदगी वो भी इदा ही होंदा ना, जिस तरह अगे जाओगे तो गहरा होता जाएगा। तो दिस इज़ कोई भी एक्वेटिक वाटर बॉडी, आ सारा ये पानी भरिया होया है। आ सब तो आप डीपेस्ट पार्ट ते आ गए। तो कोई भी एक्वेटिक वाटर बॉडी होवे, साडा घर दे विच बनाया होया या बाथरूम दे विच लाया होया टब ना होवे, तो वो सारियां यूजअली ऐदा दा ही फिनोमिना शो करदियां। मतलब हर तरह की डूंघाई जिहड़ा हैगा उन्हां दे विच हुंदी है। कोई भी नदी भी वेखोगे तुसीं ते उहदे कंढे तो जिस तरह अगे नूं जाई जाओगे तो आप गहरे पानी दे विच जिहड़ा हैगा चले जाओगे। तो आही चीज़ आपां इत्थे बनाउण दी कोशिश कीती है। तो आप इत्थे वेख सकते हो यह घट गहरा है ना। अपने आप को इमेजिन करके वेख लो, तुसीं इत्थे खलोते हो तो डिगोगे नहीं, लेकिन इधर नूं भजी जाओ तो गायब हो जाओगे ना। तो इत्थे उपर सूरज बना दो, क्योंकि आपां बनाना है लाइट दे अलग अलग जोनस। तो वो लाइट दे अलग अलग जोन किसी भी एक्वेटिक हैबिटेट दे विच जिहड़ा हैगा हो सकते हैं। पहला जोन जिहड़ा बनता है असी उसनूं बोलते हैं फोटिक जोन। पहला जोन जिहड़ा साडे कोल बनता है असी उसनूं बोलते हैं फोटिक जोन। फोटिक जोन नूं लिटोरल जोन भी कहा जाता है। लिटोरल जोन लिटअप का मतलब लाइट ही लाई। लिटोरल जोन या लाइट ही लाइट। तो आ देखो इधर जे आप इत्थे टॉप ते सूर्य देव बना दिए, तो आप देखो इस सूरज दियां किरणां मतलब जे आ इहदी मैक्सीमम डैप्थ है, तो मतलब आ तो इहो जिहा एरिया हो गया ना जिथे लाइट वाधू अवेलेबल है। बोलो आप वेख सकते हो डायग्राम दे विच आ वाला एरिया तो ऐसा एरिया हो गया जिथे लाइट पूरा बॉटम तक
पहुँचती पई है, क्योंकि देखो लाइट इत्थे थल्ले भी आउंदी पई है, लाइट इत्थों थल्ले भी आउंदी पई। तो आ एरिया ऐसा एरिया हो गया जिथे लाइट दा नामो निशान भी नहीं हैगा। बोलो दीदियो क्लीयर है? तो फिर पहले वाला इधर वाला दस्यो बनता है लिटोरल जोन, यानी कि लिटोरल जोन किहड़ा जोन हो गया? इट इज़ द शैलो रीजन ऑफ अ शैलो या एज वाला रीजन ऑफ अ कोस्टल एरियाज, जिथे लाइट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ। तो जो लाइट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ तो फिर बड़ी क्रिस्टल क्लीयर जी गल होगी। इत्थे लिख देना लाइट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मतलब वाधू सारे अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स, वाधू सारे अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स का मतलब है वाधू फूड। वाधू फूड किन्ना दा? जानवरों का। तो यदा मतलब जे दोनों प्लांटा तो एनीमलों इकट्ठा करदा तो आई कैन यूज़ द वर्ड लाइफ। तो यदा मतलब की हो गया कि लाइफ की अवेलेबिलिटी वाधू है, अबंडेंट लाइफ इज़ प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ प्लांट और इन द फॉर्म ऑफ अ एनीमल्स। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट जिहड़ा हैगा इस पहले जोन दे विच इह सारी जगह दे विच लाइटोरल जोन दे विच वाधू लाइट है। तो इस करके इत्थे अलग अलग तरह के बंदे पाए जाणगे। बोलो दीदियो क्लीयर है? ओके। इस फोटिक जोन इनू फोटिक जोन भी बोलते हैं। फोटिक मतलब लाइट के नाल भरिया होया। इसनू कई बार दो कैटागरीज डिवाइड कर देंगे। आ इन्ना हिस्सा इहदी ते गल ही ना करो, आ सारा हिस्सा ये हैगा यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन मतलब भावें घट लाइट अवेलेबल हो भावें ज़्यादा लाइट अवेलेबल हो, इत्थे लाइट अवेलेबल ही अवेलेबल है, वाधू लाइट अबंडेंट खुली लाइट। थोड़ा जिहा इस तो थल्ले चल जाइए जिथे हो सकता है कि ब्राइट सनी डे दे कोई प्रॉब्लम ना आती हो, लेकिन उस तरह जो लाइट की इंटेंसिटी घटती हो तो उत्थे लाइट थोड़ी जी जिहड़ा घट जाती हो, तो वी डू कॉल दैट एज अ डिसफोटिक जोन। बोलो दीदियो क्लीयर है? तो यह सारी चीज़ नूं आपां लाइमैंटिक जोन भी बोल सकते हैं, जिथे यूजली लाइट अवेलेबल आ पर किसी खास टाइम पर जो लाइट की इंटेंसिटी घट हो, बारिश वाले टाइम पर क्लाउडी डे के उत्ते लाइट की अवेलेबिलिटी घट जाती हो। मतलब ठीक है? उस तो थले जिथे यूजली लाइट घट ही आ, जिथे किते कदी कदाई लाइट पहुँचती है, दैट इज़ नोन एज अ प्रोफंडल जोन। वो किहड़ा जोन है? प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन दे विच यूजली अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट बहुत घट आ, कदी कताई लाइट पहुँचती है, कोई साल च महीने च कोई 6 महीने में पहुँचती है, जो कितने बहुत ज़्यादा ग्रेट तगड़ी लाइट इंटेंसिटी हो। अदरवाइज उत्थे डार्क ही रहिंदा, लेकिन उत्थे अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ हैगी है, लाइफ उत्थे पाई जाती है। उसदा कारण ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੈਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੈਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਸਕਦੇ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਈਏ ਚਲੀਏ ਥੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ। तो ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲਾਈਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੈਂਥਿਕ ਜ਼ੋਨ। ਬੈਂਥਿਕ ਜ਼ੋਨ बॉटम ऑफ द सी, कंप्लीट डार्क, जिथे कोई भी किसी भी तरह के जोड़ा है ऑर्गेनिज्म या जानवर जोड़ा है नहीं पाए जाते, नहीं लभदे। बेंथिक जोन कंप्लीटली डार्क जोन है। कंप्लीटली डार्क जोन का मतलब नो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एट ऑल, कभी भी उत्थे लाइट नहीं पहुँचती। तो फिर इत्थे एक ही तरह के बंदे होणगे ना, इत्थे कौन होणगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई प्लांट होवे, बिना लाइट तो किहड़ा प्लांट ग्रो करेगा। तो फिर जो प्लांट नहीं, फूड नहीं, तो फिर इसका मतलब कोई जानवर नहीं, कोई एक अद्धा इकलौता स्पैशल अडेप्टेशन वाला ल्यूमिनिसेंट या डीप सी फिशिज या उपरों कुछ स्पैशल फिशिज ने जिन्होंने को स्विम ब्लैडर वगैरह है, वो कितने गेड़ी गूड़ी मारन इस इलाके आ जान, अदरवाइज जानवर भी इत्थे नहीं पाए जाते। फिर इत्थे कौन पाया जाता? इत्थे की अवेलेबल आ? इत्थे अवेलेबल आ ओनली दो बंदे, एक का नाम है बैक्टीरिया तो दूसरे का नाम है फंजाई, जिसनों असी अपनी टैक्नीकल भाषा दे विच की बोलते हैं?
ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ। ਐਂਡ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੰਗਸ, ਫੰਜਾਈ। ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ? तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर लाइट। आ लाइट वाला टैंपरेचर जोड़ा है कंप्लीट हो गया। कल पढ़ांगे नैक्सट। तुसीं ब्लैक बोर्ड का एक छोटा जिहा पार्ट रह गया सी, वो भी वेख लो, बाकी कल पढ़ांगे।